So good afternoon, everybody. So I think this is the workshop for essay, right? And for the last couple of days, we have arranged a lot of workshops. Yesterday, I think we were doing that answer writing workshop, right? So now about the essay, if we see, it is a very, very important part of your mains examination. Looking at the marks allocated to it, isn't it? If you look at it, let's say general studies, optional and essay. If we divide our mains examination into it, we can divide it into three things, right? One is obviously optional question paper, which has a 500 marks ka weightage, essay, which has a 250 marks ka essay weightage, and GS papers has 1000 mark ka weightage. But now why we are discussing it? Everybody knows it. We want to discuss it for understanding that the marks that this subject or part of, let's say, syllabus has and the time that we allocate to it, isn't it? So let's try to connect with GS paper 1 that you all study. So what are the integral component to it? History, geography and society. Now you tell me, whatever time that you have invested in preparation of history plus geography plus society, which has 250 marks, have you given the same time to essay? Are dila ka? So, what is wrong in this particular way? We are not doing the time management according to the demand, that is marks allocated to subject. And this will showcase in our result. Now, I will tell you another point which is related but from the other side of the argument. Now, you tell me, this 250 marks that is allocated to any GS part, GS paper 1, 2, 3, 4. And when we compare it with marks that students are getting in, let's say, essay. So can we say that those who have qualified last year, they got into the services, if you see, a lot of people have got 125, 135, maybe 140 marks in essay. A lot of people are getting these marks. But can we say that the number of students who are getting maybe 135 plus marks in GS paper 1, 2, 3, 4, any are comparatively less? Can we say so? Or is this argument correct? That people who are scoring 130 plus marks in GS, any paper of GS, in number is numerically is lesser than the number of people who are getting good marks in essay. So what does it mean? That a area of a syllabus which has a 250 marks has a higher potential to score good marks. But we are not investing sufficient time on it. Then what will happen? Cost benefit analysis mein gadbad ho jayega. See, after all, when your result will come, and suppose whatever is your total, you got, let's say, 953 marks, final total. Nobody is going to care how much marks you got in any paper. Everybody will be looking at the final total. So essay marks are very important to increase your final total. Now everybody knows it. Naya kuch to bola nahi. So if I know it, how I shall be looking at improving my that final total along with my essay preparation. और इसी के लिए ये workshop, I think from the morning you all people are attending it. I think सबसे पहला lecture Vikrant sir must have taken it. Now Jadhav sir must have talked about political dimensions of essay. Now this particular session will be primarily focused on social dimensions which are in essays UPSC is asking, right? So first we are going to use this particular PPT for our discussion, but it is not necessary for anybody to write whatever I have written here. This is just for maintaining our discussion on a particular, let's say, a particular thought. But whatever I am discussing, whenever I am discussing something, if you find out that this is something which need to be done and I am not doing it, let's say study, this is not everybody is doing. So that you purposely write it down on your notebook or whatever page you are using it, and please use it to formulate your strategy for the next time that you are investing here, right? So, सबसे important चीज है, what are the different types of essays that UPSC is asking? I think this is very common thing, everybody must have done it.
But really, have we done it? It is very important to give a thought about. Everybody knows that philosophical essays are nowadays becoming more trending area from the essay. But what is exactly a philosophical essay? This is also interesting to know. Now, anything that is given in quote is not necessarily a philosophical essay. अरे आप समझ रहे हो? Sometimes it could be a social essay, social और सोसाइटी इशू के ऊपर ऐसे दिया है, जिसका एक एग्जांपल हम लोग डिस्कशन में लेंगे, राइट, थोड़ी देर के बाद. इट कुड बी मे बी an issue may be related to technology, it could be maybe issue related to environment, it could be maybe issue related to politics, economics, different aspects of social life that is happening around you. So have you done any such type of analysis that whatever essays has come till today, बहुत भी पुराना जाने का जरूरत नहीं, let's say take a 5 years essay from the UPSC's paper and try to find out how many essays are given from the philosophical dimensions, how many issues are asked on social topics, how many on economics topic. ऐसा कुछ एनालिसिस किया है क्या? नहीं किया तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. If I do that, I will find out that every year, almost every year, I will find out that they are asking essays on आ जाओ, सोच रहा है. Every year they are asking essays on the society related topic. Every year I have given you a list of topic. Also we'll go through that topic, right? But why I am trying to understand this? Because when I will be doing an analysis कि let's say last 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकाले, बहुत इजी, यूपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाते हैं, डाउनलोड करना है और उसका लिस्ट बना के रखना है. Now I will be making a list. let's say कि ये 4-5 थीम्स है, इसके ऊपर केस आते हैं. तो सपोज इफ आई एम यूजिंग ए कंप्यूटर, आई विल मेक अ वर्ड फाइल, एक टेबल बनाऊंगा, उसमें डालूंगा फिलोसॉफिकल कोड के ऊपर ऐसे कॉपी पेस्ट करके उसमें डालते जाऊंगा. सोशल इश्यूज के ऊपर कैसे उसका लिस्ट बनाऊंगा, उसमें डालते जाऊंगा. ब्रैकेट में आई विल ऑल्सो राइट द ईयर इन विच द एसे हैज अपीयर्ड. व्हेन आई विल प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टेबल, एक प्रिंट आउट निकाल के रख दो या कंप्यूटर पे देख लो. Then I will understand, suppose I am analyzing only social topics, I understood that almost every year they are asking question on social issues. And now you have to find out which is your strong area, which is your weak area. Suppose somebody is very good in decoding the philosophical quotes and writing beautiful essays. ये तो natural ability कुछ लोगों में हो सकता है, right? Or some people might have developed this ability during their schooling age. स्कूल कॉलेज में होते हैं ना कुछ लोग जो बहुत पार्टिसिपेट करते ऐसे कॉम्पिटिशन में, वक्तृत्व स्पर्धेत भाग घेतात, त्यांना नंबर पण मिळतो, बरोबर की नाही. नाउ दे हैव अ नेचुरल एबिलिटी की है, ये क्वालिटी है, बट अभी सोच रहे हैं हम लोगों को मिला है की नहीं मिला. आणि वर्गात पहिला आलतो वगैरे नाही. वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सब गुड लेवल कॉम्पिटिशन. वर्गात 3 लोक होते, पार्टिसिपेट केला, दोघांचे पेपर मी फाडले, तसं नाही. Not that level. We are talking about at least at a certain, let's say, state level competition में I have participated and then I got the rank. Then that quality you have. Otherwise, you can write something and you have to find out कि my quality of writing something is good or not. That you can evaluate on yourself. But we will assume that कि नहीं है वो natural या let's say आप बोल सकते हो कि initial schooling period में उतना अच्छा ability नहीं develop हुआ है. बट अभी तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज 250 मार्क्स का सवाल है ना. हाउ टू डू दैट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि कौन से टाइप्स थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आते हैं, एंड देन आई विल फाइंड आउट कि यस दीज 3 to 4 एरियाज आर देयर विच आर रिपीटेडली बीन आस्क्ड इन एसेस. फिलोसॉफिकल ऐसे आ रहा है, इकोनॉमिक के आ रहा है, एनवायरमेंट के ऊपर आ रहा है, सोशल आ रहा है, पॉलिटिकल आ रहा है. नाउ nobody will suggest you to skip anything, but now it shall be your choice ki what shall be prepared in a better way. Suppose I have decided that my social analysis is comparatively better, मेरा thought process वैसा develop हुआ है, maybe मेरा sociology optional हो सकता है, और because my optional is political science, political thought के ऊपर अगर ऐसे लिखूंगा तो I will have more content, more critical thinking I can use in writing this essay. So I have to decide what is my strong area, isn't it?
जैसे क्रिकेटर की तरह, कल गुगली बॉल का एग्जांपल लिया ना, नहीं कौन सा लिया था, हाँ बाउंसर का, तो आज अलग एग्जांपल कि एवरी क्रिकेटर नोज हाउ टू प्ले डिफरेंट शॉट्स, बट कोई एक दो शॉट्स उसके बहुत परफेक्ट उसने किए होते हैं, हैज मास्टर्ड दैट पर्टिकुलर शॉट्स, अगर वहां पे आप बॉल डालोगे तो जरूर वो क्या करेगा, मैक्सिमम रन लेगा। तो बिकॉज ही हैज मास्टर्ड दैट थ्रू आउट द प्रैक्टिस, दैट इज हाउ यू हैव टू ऑल्सो मास्टर सम ऑफ द एरियाज। सपोज फॉर अ डिस्कशन पर्पज वी सेड दैट आई हैव डिसाइडेड कि सोशल इश्यूज, फिलोसॉफिकल इश्यूज एंड पॉलिटिकल इश्यूज ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज है, इसके ऊपर मैं खेलूंगा। ऑब्वियसली बाकी का आएगा, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आएगा तो भी तो मैं लिख ही सकता हूँ, बट दीज आर द 3 एरियाज विच आई विल प्रिपेयर बेटर। तो आई नीड टू नो ना कि इसके ऊपर पहले कौन कौन से ऐसे आए थे। तो सपोज आई एम एनालाइजिंग कि सोशल इश्यूज है, इसके ऊपर ऐसे आते हैं, तो सिर्फ सोशल इश्यूज बोल के नहीं चलेगा, देयर आर सर्टन इन बिटवीन थीम्स आल्सो जिसके ऊपर वेरी करेगा यूपीएससी व्हेन दे आर आस्किंग द क्वेश्चन। तो विच विल बी दीज थीम्स इफ आई लुक एट लास्ट 10 years ऐसे, एंड आई हैव एनालाइज कि लास्ट 10 साल में 12 ऐसे आए हैं सोशल टॉपिक के ऊपर, ये 12 ऐसे में से 5 ऐसे वुमन पे आए हैं, तो व्हाट डज इट मीन्स, दैट वुमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम दैट यूपीएससी कंसीडर व्हाइल फ्रेमिंग ऐसे टॉपिक्स। और इसके लिए कोई आपको एक्सेप्शनल एनालिटिकल स्किल करने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू स्पेंड 2 hours and 20 hours on watching some videos on YouTube कि मैं आपको बताऊंगा ऐसे का एनालिसिस कैसे करता हूँ, देख लो कोई बात नहीं, बट वो भी जो बताएंगे उसके बाद यू हैव टू डू इट, एंड व्हेन यू विल डू इट यू विल पुट इट इनटू अ मे बी अ टेबल, एंड आपके सामने 12 टॉपिक्स है, सोशल इश्यूज के ऊपर के ही बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो उसमें से आप देख रहे हो 5 बार यूपीएससी ने क्या पूछा है, वुमन के ऊपर ऐसे पूछा है। तो नो बडी नीड्स टू बी आइंस्टाइन टू अंडरस्टैंड हियर, वुमन के ऊपर इस साल भी क्वेश्चन आने का चांस है ना, आइडेंटिफाइड इट ना, नो व्हाट शैल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस थीम को मैं कवर करूंगा ना, आई टू फाइंड आउट सर्टन मल्टीपल थीम्स आल्सो। हमेशा देखो सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, ये हमेशा थीम रहा है यूपीएससी का, जब भी वो क्या बनाएंगे, ऐसे टॉपिक बनाएंगे ना। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, you need not to believe me because I am saying it, you need to do an analysis to exactly find out whatever I am saying, is it right or wrong. So just let's do this particular analysis. Now these are the essay topics that are in front of you, और ईयर भी लिखा है देखो, राइट, माझ्या मनाने नाही लिहिले, यूपीएससीच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये ऍक्च्युली हे टॉपिक्स आलेले आहेत, ज्यांना डाऊट आहे ते यूपीएससीच्या वेबसाईटवर चेक करू शकतो। कोणी काढला का मोबाईल, नाही बघा, let us try to look at these topics, and whenever we are looking at it we will also try to do the analysis that I am trying to teach you ki which theme is repeating. Now let's read the first topic, read it मोठ्याने वाचूया की सगळ्यांनी मिळून वाचा की, काय अर्थ आहे, tell me, did you understand the meaning of the quote that is given? It is a quote, na? It's a quote. That was the first argument that I was making. Not every quote need not to be philosophical. Actually, everything in the world is philosophy only. Everything in the world is philosophy. It is the mother discipline of every discipline. उसी से ही तो सब disciplines बनी है. But now we have to go beyond that. कि ये सोशल इशू कैसे है उसको कनेक्ट करेंगे, एवरीथिंग इज फिलोसॉफी, बट उसके आगे भी तो जाएंगे। देखिए बताओ मतलब समझा, अरे समझा नहीं समझा, नहीं समझा तो वापस एक बार पढ़ेंगे, पढ़े, अभी समझा, नहीं समझा तो क्या करेंगे, देखते रहो उसकी तरफ, शायद मान जाए। टॉपिक अभी आया है एग्जाम में, ऐसे क्या करोगे, अब द बेस्ट आंसर इज मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगा उसके बारे में, दैट इज गुड, ठीक, बट द पॉइंट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एक वर्ड के बारे में तो बात ही कर सकते हैं ना। हैंड का मतलब पता है सब लोग, रॉक का मतलब पता है, दगड नाहीये त्याचा अर्थ इथं, तो WDBLE वाला पण रॉक नाहीये, तो रॉक आहे नाही का, रॉक, दॅट रॉक इज हियर। क्रेडलचा अर्थ माहिती सगळ्यांनी वापरला आयुष्यामध्ये, अरे काय, रूल्स द वर्ल्ड,
काय अर्थ झाला आता? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इट? अरे असं काही मराठीमध्ये ऐकलंय का? जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जग उद्धरे, असं ऐकलंय का? सो व्हॉट इज द फर्स्ट थिंग दॅट वी लर्न हिअर? वी नीड टू लर्न इंग्लिश. lot of people believe that because I am attempting UPSC in English medium, I know everything. No, that is the first challenge in essay paper people will face. They will read the topic, but it will be very difficult to understand what is the real meaning of it. How to improve upon that? That is where your essay preparation starts. Not at the table and chair where you will take a topic and start writing. That is the second stage in the essay preparation. The first stage starts here. First stage starts here. Right? Diverse reading. This is how you need to develop yourself a capable person to write a good essay. यहाँ से ही शुरुआत होगी. सेकंड स्टेज है राइटिंग. एक्चुअली बैठ के मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि सी लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग कि व्हाई आई एम नॉट राइटिंग एन एसे, और व्हेन एवर आई एम राइटिंग एन एसे व्हाई माय एसे इज नॉट अ गुड एसे, बिकॉज आई लैक कंटेंट. तो ये दोनों एंगल से देख सकते हो. इट इज अ काइंड ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द राइट रीजन ऑल्सो. यस, lot of people lack content, and that's why generally it happens कि whenever I am writing an essay, पहले 1-2 पैराग्राफ में मेरे पॉइंट ही खत्म हो गए. अब क्या करेंगे? बीच में तो छोड़ नहीं सकते, इज्जत का सवाल है. तो you'll be writing the same point again and again, just using different wordings, giving some other example, but argument is same. 3 ही argument है पूरे essay में, रिपीट करके 9 पैराग्राफ्स बना दिए. बट एग्जामिनर इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड 3 आर्ग्यूमेंट है, वो 3 आर्ग्यूमेंट के आपको मार्क्स देगा, आगे चला जाएगा. एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर स्कोरिंग लेस देन 3 डिजिट, मींस लेस देन 100 मार्क्स इन ऐसे. गड़बड़ हो गया. एक ऐसे अच्छा लिखा, सेकंड ऐसे में थीम ही नहीं समझा, या थीम समझा है बट कंटेंट नहीं है, रिपीट लिख रहा है. लिखा है पूरा 900 मार्क्स का ऐसे, बट एक्चुअल कंटेंट 3 ही आर्ग्यूमेंट्स है, तो उसको कम मार्क्स आए, टोटल 95 मार्क्स आए. डिजास्टर नहीं आएगा, नहीं होगा क्लियर यूपीएससी. इट विल बी अ डिजास्टर बिकॉज समबडी स्कोरिंग 135, 95. कहाँ 40 मार्क कवर करोगे? बहुत डिफिकल्ट है. समझ रहे हो? तो कुछ तो गड़बड़ है दया. क्या गड़बड़ है? यहाँ पे गड़बड़ है. तो रीडिंग डाइवर्स नहीं है. अब आप बोलोगे क्या सर बच्चे की जान लोगे? सुबह से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, रात तक रीडिंग ही करता हूँ. ये सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट, ये न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, यूट्यूब सुनता हूँ, पढ़ता हूँ. इतना डाइवर्स है मेरा रीडिंग. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब पढ़ता हूँ. ऑप्शनल भी पढ़ता हूँ. पाली लिटरेचर है मेरा ऑप्शन, पढ़ रहा हूँ. क्या बोल रहे हो? डाइवर्स नहीं है रीडिंग. Yes, your reading is diverse, I understand it. But you are writing an essay, other person writing an essay, that other person is reading all this material again. Isn't it? So how you are different from anybody else? Second thing, whatever you are reading is a general study का material, which will be used for general study purpose. हाँ, ये एक background, ये एक आपका foundation बनाएगा, that is the right thing. Diverse perspective भी देगा. But that is what is everybody will have, that you will have. नया कुछ नहीं है, कुछ अलग सा नहीं है, तो अलग निकालना पड़ेगा, यो अलग ढूंढना पड़ेगा. कहाँ पे ढूंढेंगे उसको? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे जाके मिलेगा. लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू ज्वाइन आवर कोर्स, वी विल गिव यू कंटेंट. देंगे भी, अच्छी भी बात है. दैट विल बी, आपको बोल सकते हैं दैट इज अ वेरी काइंड ऑफ अ थिंग दैट अ पर्सन कैन डू व्हेन दैट पर्सन डू नॉट हैव अ टाइम. फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अपने प्रीलिम दिया, अभी मेंस है, तो दैट पर्सन कैन लुक फॉर दिस शॉर्टकट कि हाँ, आई विल ज्वाइन समथिंग, विल गेट सम गुड कंटेंट, विल रीड इट, मग अप इट, विल यूज इट इन माय essay, will get some good marks. But now I think those people who are sitting here, they are aiming for the next attempt, na? Isn't it? So they can work on the basics of it from the ground upbringing, या अब
खुद को क्या करेंगे, अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये डाइवर्स रीडिंग कहाँ पे आएगा? बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स पढ़नी पड़ेगी, नॉट एनसीईआरटीज, वो तो पार्ट है आपका जीएस का। एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग करो, लिस्ट ऑफ बुक्स बनाओ, डिफरेंट टाइप्स के बुक पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, कुछ साइंटिफिक टाइप की बुक्स पढ़ो, बहुत सारे जेंस होते हैं रीडिंग के, और पढ़ लो। कुछ लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, टाइम कहाँ है, कहाँ है? सुबह में 4 बजे पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, रात में 3:30 तक मैं पढ़ता हूँ। बताओ कब पढ़? अच्छी बात है, बट आई विल टेल यू वन थिंग. So we'll take some time, not from your active schedule. You are busy people, I know it. We will take out time from non-active schedule. कब आहे non-active schedule? जब आप सोने जाता. आता बघा सिंपल आहे, तुम्ही झोपायला गेले, बेडवर झोपले, लगेच झोप लागते का? थोडा वेळ जातो ना मध्ये. मोबाईल घेतो आपण, हाय लिहिलेला असतो म्हणतो, त्याला आपण हाय पाठवतो, मग ते डिस्कशन चालतं 1 तास, चॅटिंग, ठीक, किंवा आपण कोणाला तरी हाय पाठवलेला असतो, त्यांनी रिप्लायच केलेला नसतो, मग आपण त्यांचा डीपी बघत बसतो, जातो ना, अर्धा 1 तास जातो. We will use that time. That is a time which is not productive with respect to your regular प्रिपरेशन टाइम, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल, जो भी आप पढ़ रहे हो, लेक्चर्स कर रहे हो, उसमें ये टाइम नहीं ना कैलकुलेट किया. नाउ वी विल डेवलप एन हैबिट. ये पुराने जमाने में लोग करते थे, ये करना चाहिए. कीप अ बुक इन एट योर बेड साइड. हमेशा तकिए की जगह पे एक बुक हमेशा रखो, विच यू बी रीडिंग व्हाइल यू आर गोइंग फॉर अ स्लीप. पर ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ते रहो, नींद आ जाए, सो जाओ, बात खत्म हो गई. तो आधा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, एवरेज 10-15 पेजेस पर डे, 400 पेजेस का बुक है, 1 महीने में खत्म हो जाएगी. ऐसे थोड़ी ना करना है कि अभी बुक रीडिंग करना है, बुक लेके आता हूँ, सुबह लाइब्रेरी में बैठ के बुक पढ़ूंगा. नहीं, रॉन्ग अप्रोच. वही पढ़, उसी टाइम पे पढ़ना. एंड व्हेनेवर यू आर रीडिंग, यू फाइंड आउट समथिंग, अ वेरी नाइसली रिटन ब्यूटीफुल पैराग्राफ जिसमें कुछ बढ़िया सा लिखा है, उसको मार्क करके रख दो. जब बाद में नेक्स्ट दिन आप जब आओगे, उस बुक को उठाओगे, उससे पहले ऐसे का नोटबुक निकालो, उसमें वो उस थीम में डाल के रख दो, बुक का नाम कोट करके पेज नंबर लिख के रख दो, बस खत्म है. इसके आगे बुक पढ़ते रहो. यू विल एंजॉय इट आल्सो, यू लर्न समथिंग. पहले तो कंटेंट डेवलप हुआ, अरे हुआ नहीं हुआ. सेकंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड अ क्रिटिकल थिंकिंग, कि कैसे किसी भी इशू की तरफ देखना. See, try to understand. Now, whenever we are writing anything, it has to have structure. Yesterday we discussed it whenever we are discussing how to write 10 marker question in 150 words. Intro आना चाहिए, main body, conclusion, introduction, regionalism का question we were discussing yesterday, ना, right? तो मैंने कहा कि रीजनलिज्म का एक बढ़िया डेफिनेशन चाहिए, जिसके इंटीग्रल पॉइंट्स को मेन बॉडी में लिख के, एग्जाम्पल देके, कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड करके लिख लो. तो इफ वी आर मेकिंग अ स्ट्रेटेजी टू राइट 150 का वर्ड का आंसर, तो 1000 वर्ड के ऐसे लिखने में तो भी यही यूज करना पड़ेगा एक्सपांडेड वर्जन में. दैट पर्सन हैज रिटन 400 पेजेस का बुक, सी हिज कैपेबिलिटी. नाउ इफ यू रीड दैट, विल यू स्लोली स्टार्ट डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ कैपेबिलिटी विद इन यू. ये एक अप्रोच है बुक्स पढ़ने, उसमें से मिलेंगे. दूसरा भी एक अप्रोच है रीडिंग में ही, यू नीड टू रीड अ न्यूज पेपर. आप बोल रहे पढ़ तो रहे सर हम लोग, बट वेन एवर यू आर रीडिंग न्यूज पेपर, बिलीव मी, आप करंट अफेयर्स का चश्मा लगा के ही पढ़ते हो. अच्छी बात है, एग्जाम में आ रहा है, करंट अफेयर्स बहुत आता है, पढ़ना ही चाहिए, बट ऐसे का चश्मा नहीं लगा है ना उस टाइम पे, ऐसे का चश्मा लेके चलना चाहिए. सो दीज आर्टिकल, some article we generally you skip because they are not exactly related to our current affairs and general study syllabus. स्पेशली संडे की जो न्यूज़पेपर आता है, उसमें सेपरेट मैगजीन आ जाता है,
उसमें बहुत बढ़िया ऐसे आर्टिकल है कि पढ़, उसमें से मिलेगा कंटेंट, मूवीज में से मिलेगा, राइट। अभी इसको ऐसे मत लेना, सर ने बोला ऐसे के लिए मूवीज देखने, दे रे जरा तुझं नेटफ्लिक्स सबस्क्रिप्शन दे, आता सगळे संपूर्णच टाकतो ना. सोशल या वॉट एवर एरिया इन सोशल topics where a lot of movies has been filmed, lot of web series are there. Definitely they will give a very good content, but it has to go step by step. Books will be the primary source of content that everybody shall be looking for. Now इसका आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि अभी बैठता हूँ 15 बुक का लिस्ट निकालता हूँ और पढ़ने शुरू करता हूँ ना. इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस. देखो ना, एवरेज हम लोगों ने बोला 1 महीने में एक किताब पढ़ के हो जाए. नाउ यू पीपल आर थिंकिंग फॉर 2025 का अटेम्प्ट. मेंस लिखने तक 15 महीने तो है ना कम से कम. अरे है कि नहीं है? सितंबर 2025 तक 15 महीने तो है ना. तो 15 किताबें पढ़ के हो जाएगी, हो जाएगी. उसमें से कंटेंट निकाल के हो जाएगा. तो ऐसे डेवलप होगा कंटेंट. बिलीव मी, ये जो कंटेंट है दैट विल बी सो यूनिक दैट नोबडी, 99% of the people will not have this content in their essay. Now why I am trying to tell you, try to think about examiner. आप सोचो कि आप इस मेंस के हॉल में बैठे हो, आपने ऐसे टॉपिक लिखा, राइट. एग्जामिनर के पास इवेल्युएशन के लिए आपका शीट गया ना. वो कल भी ऐसे चेक कर रहा था, आज भी ऐसे चेक कर रहा है, कल भी ऐसे चेक करेगा. आपने जो टॉपिक लिखा है वो 4 में से एक टॉपिक है. सेक्शन ए में 4 टॉपिक थे, उसमें से आपने एक लिखा है. तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी 25% जो आपने लिखा है. आपने वो टॉपिक हमेशा चूज किया होता है, वो जनरली बहुत सारे लोगों ने चूज किया होता है. तो ऐसे समझेंगे कि अगर उसने सुबह से, जो इवैल्यूएटर है, ही इज चेकिंग योर आंसर कॉपीज, उन्होंने 15 कॉपी चेक की है, तो उसमें से मिनिमम 5 लोगों के पास लोग हैं जिन्होंने वही टॉपिक लिखा है जो आपने लिखा है ऐसे. तो कल भी उसने 5-10 कॉपी ऐसे चेक की थी इसी ऐसे के बारे में. आज भी वो सुबह से जब बैठे उन्होंने 5 बार यही ऐसे पढ़ा है ना. आपका ऐसे उनके सामने आया. आपने जब लिखा था तो आपको लग रहा था मैं तो तोफ हूं, मेरे जैसा तो कोई है नहीं. बट जब वो पढ़ रहे हैं, नाउ दैट पर्सन इज अ राइट पर्सन टू डिसाइड कि ये कौन सा तोफ है. ठीक है. नाउ इफ यू हैव स्टार्टेड विद द सेम थिंग, इफ यू आर राइटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन व्हिच एवरीबडी हैज रिटन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट विल इट गेट अबव एवरेज मार्क? वेरी डिफिकल्ट. गो थ्रू द इशू, गो इनटू द शूज ऑफ एग्जामिनर ना. वो क्या बोलेगा, हाँ लिखा है, सबने भी यही लिखा है. तो आउट ऑफ लेट्स से 2 ऐसे 250 मार्क को, ही विल गिव यू 110 मार्क्स. खत्म, बात खत्म, आगे चलो. बट एडवांटेज मिला क्या? नहीं मिला. वो एडवांटेज चाहिए था 135 मार्क्स का, वो 25 मार्क कहाँ गए? वो नहीं मिले ना. तो वो अगर चाहिए तो आपका क्या होना चाहिए? ऐसे यूनिक होना चाहिए. यूनिक मतलब गलत नहीं लिखना है. जो मैं लिख रहा हूं उसको बढ़िया तरीके से लिखना है. कैसे? तो एक एग्जांपल आज लेंगे, उसके बारे में उसके साथ डिस्कस करेंगे. बट ये आपको समझ में आ गया स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए और ये क्यों होनी चाहिए? बिकॉज ट्रेंड इज चेंजिंग. देखो इसमें बात किया है हाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग. अगर आप पुराने ऐसे टॉपिक्स लोगे 2013, 14, 15, 16 तक जाओगे तो विल फाइंड आउट जीएस बेस्ड बहुत टॉपिक आ रहे हैं. तो इट वाज वेरी इजी. जीएस का मेंस का आंसर लिखने के जैसे ही लिखना है, बट थोड़ा एक्सपांड करके लिखना है. आजकल चेंज किया उन्होंने, कॉम्प्लेक्स और फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट ज्यादा आती है, जैसे हम लोगों ने देखा ही, राइट. तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, जैसे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट रीड किया, सबसे पहले चैलेंज है वो स्टेटमेंट डिकोड होना चाहिए. जब तक स्टेटमेंट ही नहीं डिकोड होगा क्या लिखें? और ऐसे में सबसे बढ़िया जो गलती लोग करते हैं, विच विल गिव यू वेरी, और जहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स जाएंगे, वो ऐसे का थीम ही नहीं समझा, गलत थीम पकड़ा, गलत थीम पे ऐसे लिखा, मार्क्स नहीं आएंगे. वो कितना भी अच्छा लिखा, वो थीम है कुछ, उस थीम जिसने भी ये स्टेटमेंट लिखा है, वुड बी अ स्कॉलर, फिलोसोफर, जो भी बंदा है, उसने कुछ सोच के इसके बारे में लिखा है ना. तो उस सोच को अलाइंड ही आपको उसके बारे में लिखना होगा, तभी मार्क्स आएंगे. इसीलिए फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशन और आगे की जो बातें हैं, इंटीग्रेशन विद करंट अफेयर, डाइवर्स थीम्स, इसके बारे में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा. जो मैंने बोला था आपको टेबल बनाओ, ये टेबल जब आप बनाओगे, अलग अलग थीम्स में डालोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट फिलोसॉफिकल एंगल से बहुत ऐसे आए हैं, बट एट द सेम टाइम यू विल फाइंड आउट सोशल इशू भी आए हैं, इकोनॉमिक इशू भी आए हैं, पॉलिटिकल इशू भी पूछे हैं,
साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड एसेज भी पूछे, नंबर फिलोसॉफिकल ऐसे का ज्यादा होगा, बट साथ में ये भी ऐसे है, तो किसके ऊपर मुझे प्रिपरेशन करना है, दैट यू इंडिविजुअली कैन डिसाइड। बट जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे देखो आपके सामने मैंने लास्ट कुछ सालों के ऐसे टॉपिक्स लिखे, एंड वी आर प्राइमरली फोकसिंग ऑन सोशल इशू बेस्ड करंट अफेयर्स टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स। तो देखिए पढ़िए, पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इसमें थीम क्या है वो मुझे आप बताओ। वुमन इज अ थीम, वेरी करेक्ट। आगे बढ़िए, ये पढ़िए, व्हाट इज द थीम, टेल मी। Inequality. Now you understood it when we were reading the first essay topic, and when we crossed the first hurdle कि टॉपिक क्या है वो समझ में आ गया। पहले वही नहीं समझ में आता, वो फर्स्ट हर्डल था, लेकिन जब समझ में आ गया तो we were very much all were agreeing that woman is a theme। यहाँ पे then now confusion है, ये भी वर्ड लग रहा है, ये भी वर्ड लग रहा है, कोई कोई बोल रहे क्या पता कुछ भी, और ये भी वर्ड हो सकता है थीम। पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन, बट आई विल से कि ये दो वर्ड के ऊपर लॉट ऑफ पीपल विल बी कनेक्टिंग टू, ट्राइंग टू कनेक्ट इट, कि क्या यही थीम है, सोशल इनइक्वालिटी थीम है या पैट्रियार्की थीम है, क्या थीम है, ये फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप प्राइमरी थीम नहीं अंडरस्टैंड करते और उससे जो कनेक्टेड आर्गुमेंट है वो नहीं आइडेंटिफाई करते, तब तक फ्लो कैसे डिफाइन करोगे। जो फ्लो है ऐसे का, उसमें डिफाइन होना चाहिए ना, किसको किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो। सोशल इनइक्वालिटी को पैट्रियार्की के साथ कनेक्ट कर रहे हो, या पैट्रियार्की प्राइमरी थीम है जिससे सोशल इनइक्वालिटी डेवलप हो रहा है सोसाइटी में, ये फ्लो मेंटेन करना है या एंगल पकड़ना है, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए ना, तभी तो फ्लो आपके दिमाग में राइट रहेगा। तो ये एक हर्डल यूपीएससी में एग्जामिनेशन हॉल में आपको आएगा, समझ रहे हो ना। दूसरे आगे जाते हैं, आगे देखिए, टॉपिक पढ़िए। और बताइए क्या है थीम। ओके, हाँ, वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस। ओके, और बता। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिबेट है, ये बोल रहे, बढ़िया। और बता क्या थीम, क्या पकड़नी, क्या फ्लो आना चाहिए। सामने ही तो है, सोशल जस्टिस थीम है, चलो पकड़ लिया। और फ्लो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। या ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बोथ इन्फ्लुएंसेस ईच अदर, बट प्राइमरली ये जब होगा तो आगे का चीज हो सकता है। आगे का चीज है इसलिए ये होगा, ऐसे नहीं है। ये किसके बारे में, किसने किसको क्या बोला, कंफ्यूज हो। एग्जाम्पल ले ले, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, इसका मतलब सोशल जस्टिस है ही, ऐसे नहीं कह सकते। एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई है, क्या बनाया उन लोगों ने, सिटी मस्त आहे ना एकदम। अरे गेलते का बघायला, यूट्यूब व्हिडिओ थ्रू तर बघितलं असेल। बुर्ज और खलीफा बघा, तुला मोठी बिल्डिंग आहे बघा, रोड बघा, वाळवंटामध्ये स्नो पार्क बनवलं, वाळवंटात स्नो पार्क,
किती पैसा असेल त्यांच्याकडे. बट वेन यू लुक ॲट सोशल जस्टिस, इज इट देअर? टॉक अबाउट वुमन, टॉक अबाउट मायनॉरिटीज, टॉक अबाउट मायग्रंट्स. लोक जळून मेले तिकडं. नथिंग हॅज हॅपन. आर यू रीडिंग न्यूजपेपर? सम मायग्रंट्स, टुरिस्ट डायड डाऊन. नो ॲक्शन. डेमोक्रेसी आहे का? स्टील मोनार्की. इजंट इट? सो टेल मी, is economic prosperity is resulting in everything? No, it is not resulting. That is an argument. अरे आता कळालं का? But economic prosperity without social justice is meaningless. हे argument केलं. No social justice without economic prosperity. But again, without economic opportunity also, it is very difficult to bring social justice. What is justice? What is justice? Fairness. Very right. Who talks about fairness? You are saying it, but who originally talked about it? John Rawls. Now very important point, that though this is a societal topic, yes, very current social analysis is very important, but cannot leave the ethical arguments here. You have to develop this ethical debate. Ethical debate has to be there in your essay. It has to be there. Every time you find out this moral dilemma that you individually face, कि ये करूँ का हे करूँ, the way you see it, कि what is the right thing to do, at a policy level government or at a societal level society goes through this particular ethical dilemma. What shall be the thing that shall we do? In the first, government when designing a policy has to go through this particular dilemma. Again, example, education. Look at the argument in the 1950s to 60s time period, and look at, let's say, 1919 or let's say 2000 plus onward. How was education policy in India was developed? There was a huge ethical debate in the government. Shall we include Right to Education Act, or let's say Education for All का जो argument है सर्व शिक्षा, is it possible in 1950s 60s? It has to be there for social justice, na? If you do not give education to all, then what is the point of it? But no, government of India is focusing on IITs and IIMs, isn't it? Is it social justice? No. Only few institutes are there. 3,000 people will become engineer and 1,000 people will become managers. What about crores of people who are not even getting a basic education? उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है. तो गवर्नमेंट के दिमाग में तो डायलेमा होगा ना, ये पॉलिसी लगाए या राइट टू एजुकेशन टाइप कुछ लेके आ जाए. ये ऑलरेडी डिस्कशन है. इसीलिए देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठा था तो बात कर रहे थे राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाए या नहीं बनाए. तो उन्होंने सोचा, बट दे आल्सो थॉट अबाउट इट कि सोशल जस्टिस लाना चाहिए, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है कहा, इंडिया में गरीब देश है बाबा अपना. थिंक अबाउट 1950s का ना. आज बोल रहे वी बिकेम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. तब नहीं था, कुछ नहीं था, सारा लूट लिया था अंग्रेजों ने. वॉर भी हुआ इमीडिएटली 48 में. तो पैसे है नहीं ना, तो जो थोड़ा सा पैसा है उसको कहाँ लगाएंगे? फ्यूचर में सोशल क्या कर सकते, जस्टिस लाने के लिए लाएंगे. तो आईआईटीज बनाए, इंजीनियर्स बनाए, मैनेजर बनाए, जिन्होंने पीएसयू चलाई, 4 पैसा देश में आया. तो बाद में जाके आप सोच सकते हो कि अभी जेब में पैसा है तो सबको फ्री एजुकेशन दे देते हैं, तभी आएगा सोशल जस्टिस. अरे समझ रहे हो? तो क्या मैंने ये एथिकल डिबेट लिखा? अरे आप समझ रहे हो? और जब मैं एथिकल डिबेट लिख रहा हूं तो एक एग्जांपल भी बता दिया. यही करना होता है ऐसे में. एक आर्ग्यूमेंट डेवलप करो जिसको एक एग्जाम्पल में इंटीग्रेट करके बता दो ना. उसमें 2 मेथड है एग्जाम्पल कैसे यूज करना. नाउ लॉट ऑफ पीपल आल्सो डू इट, दैट दे विल टेक ओनली 1 एग्जाम्पल थ्रू आउट द एसे और उसको देंगे अलग अलग, इसको कनेक्ट करके बताएंगे. बहुत बार बुक्स जनरली आर रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल. कोई बुक है
वो एक ही एग्जाम्पल होता है, उसका एक हीरो होता है या जो भी हीरोइन होती है बुक की, उसकी लाइफ के आजू बाजू में वो पूरा बुक लिखा जाता है। बट दे हैव दैट कैपेबिलिटी कि एक ही चीज को बहुत बढ़िया से अलग अलग तरीके से लिखेंगे। वो हम भी कर सकते हैं अगर दैट टाइप ऑफ क्वालिटीज है। नहीं तो क्या करेंगे, हर आर्ग्यूमेंट जो है, एवरी आर्ग्यूमेंट शैल बी वन पैरा, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल हम लोग उसमें लिखेंगे। अरे कर सकते हो, लेकिन उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। इट डज नॉट मीन दैट कि एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल लिख रहे, एग्जाम्पल एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा किसका एग्जाम्पल लिखा है, क्यों लिखा है, क्या कर रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो कुछ भी चीज एक्सेसिव नहीं करनी। एग्जाम्पल होने चाहिए, इसका मतलब ऐसे नहीं कि 20 एग्जाम्पल लिखे। 5, 6, 7 आर्ग्यूमेंट है, 6-7 आर्ग्यूमेंट है, 7 पैराग्राफ है, उसमें से 4 पैराग्राफ में बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया, कुछ एग्जाम्पल है वो 2 पैराग्राफ में मिलके दिए, कुछ एग्जाम्पल है वो इंडिविजुअल उसी पैराग्राफ के लिए मैंने बताया। ये आप डेवलप कर सकते हो। अरे आप समझ रहे हो, राइट? तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एस्पेक्ट्स। ऐसे आप आगे भी देखोगे, आगे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको दिखेंगे इसके ऊपर आए हुए, देख लेना। ये टॉपिक जब आप देखोगे, ये वाला हेल्थ एंड एजुकेशन, इसका थीम क्या है जरा बताओ, क्या थीम है इसका? हाँ, कहां से आया ये आंसर? बढ़िया। इसको आप 2 चीजों से कनेक्ट कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली डेवलप कनेक्ट करोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, अभी वहां पे दिख रहा है इकोनॉमिक, यहाँ पे बैकवर्डनेस लिखा है, मतलब क्या, सोसाइटी बैकवर्ड है, तो बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है सोसाइटी बैकवर्ड है। तो इसको थोड़ा बड़ी थीम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, सोशल एम्पावरमेंट के साथ, सोसाइटल डेवलपमेंट के साथ। तो ये थीम रख के आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई है, सोसाइटी बैकवर्ड है इंडिया का कुछ चीजों में, जिसमें प्राइमरी रीजन जो है, मतलब सोसाइटी चेंज होना चाहिए ना, टू बिकम अ मॉडर्न सोसाइटी, टू बिकम अ डेवलप्ड सोसाइटी, जो एग्जिस्टिंग है उसको चेंज होना पड़ेगा, इट शैल बी अ पॉजिटिव चेंज। तो हु आर द एजेंट्स ऑफ चेंज? लॉट ऑफ एजेंट्स आर देयर लाइक टेक्नोलॉजी। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 एजेंट्स है, इसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो सोसाइटी डेवलप होगा। तो ह्यूमन को डेवलप करो, लॉट ऑफ ह्यूमंस इफ डेवलप इन दैट सोसाइटी। सोसाइटी है ही क्या, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर। अगर इंडिविजुअल को डेवलप करोगे तो अपने आप सोसाइटी डेवलप हो जाएगा। ये थीम है। बैकवर्डनेस को पकड़ के मत लिखो कि नहीं किया तो हुआ नहीं, नहीं किया तो हुआ नहीं, निगेटिव टोन होगा ऐसे का। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ रहा हूं, क्या समझ रहा हूं कि जो भी ऐसे लिखोगे उसका टोन निगेटिव नहीं होना चाहिए। इट शैल नॉट बी पेसिमिस्टिक, द टोन शैल बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। टॉपिक कैसा भी हो, इसका मतलब झूठ नहीं लिखना है कि इंडिया में सब लोग पढ़े लिखे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबके पास पहुंची है, ये नहीं लिखना है। रियल फैक्ट्स ही लिखने, बट टोन उसका पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, सेम ही चीज निगेटिव और पॉजिटिव में आप कैसे लिख सकते हो? फॉर एन एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि इन इंडिया द एनरोलमेंट रेशियो ऑफ अ वुमन इन हायर एजुकेशन इज वेरी लो। सही है, ये तो फैक्ट है, पर टोन निगेटिव है। अरे बरोबर है। इसको एक पॉजिटिव आप कैसे लिख सकते हो? That the enrollment ratio of a woman candidate decreases from primary, secondary to higher education, but yet it has improved in last 20 years. ये क्या हो गया टोन? तो मैं फैक्ट से दूर नहीं गया। आई एम नॉट सेइंग एवरी वुमन इन इंडिया इज हैविंग PhD। क्या गलत तो लिखना ही नहीं है, फॉल्स आर्ग्यूमेंट या फॉल्स वहां पे बात करनी नहीं, गलत झूठ नहीं लिखना है, वो तो पक्का नहीं लिखना है। बट जो मैंने आर्ग्यूमेंट लिखा उसका टोन पॉजिटिव करके लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन एसे, राइट? क्योंकि वो एग्जामिनर जब पढ़ेगा बहुत ही क्रिटिकल है। आप भी खुद सोच लो ना, whenever you are reading any newspaper article and it is too critical to anything, let's say government policy, आपको ही पढ़ने के बाद ऐसे लगता है यार कितना कितना दुखी आदमी है, ये देवदास का भाई है। ये नहीं, ये भाई ब्यूरोक्रेसी में आपको देवदास लोग नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि उनको पता है क्या प्रॉब्लम है,
बट दे आर लुकिंग इट इन ऑप्टिमिस्टिक वे, सोल्यूशन फाइंड आउट करने का सोचता है, पॉजिटिवली देखता है, ये एटीट्यूड उनमें होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये सारा जो भी अभी तक आप लोगों ने बोला उसको एक केस स्टडी में डालते हैं। ये देखो केस स्टडी मतलब एक ऐसे, इसके बारे में सोचते हैं। तो पहले आप सोचो क्या सोचना है इसके बारे में, कैसे करेंगे। समझो एग्जाम हॉल में बैठे हो, ऐसे टॉपिक आया है, आपने सिलेक्ट किया यही लिखेंगे, राइट? तो लिखने के लिए क्या है, 1.5 घंटा है आपको एक ऐसे लिखने के लिए, 2 ऐसे लिखने के लिए 3 घंटे, सही है? तो 1.5 घंटे में से आप क्या करोगे, अराउंड 10-15 मिनट्स यू विल बी यूजिंग इट फॉर थिंकिंग अबाउट इट, स्ट्रक्चरिंग इन, पुटिंग इन टू प्लेस। तो यही काम करेंगे, बस टाइम थोड़ा सा कम लेंगे। तो टेक 3-4-5 मिनट्स, टेक अ नोटबुक एंड ट्राई टू मेक अ स्ट्रक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर एसे टॉपिक। इमीडिएटली करो, जल्दी जल्दी करो। अपने पास 10 मिनिट है, उसमें से 4 मिनिट आपके। मला कोणी लक्ष का नाही देते, एवढे बिझी झाले का? 5 मिनिटं झाले ना? कळालंच नाही ना वेळ कसा गेला? काम करत असलं की होताच बघा, आता लक्ष देऊया, ठीक आहे? Now see why we did this activity. Try to understand. Now look at how many points that you have tried to generate. किती पॉइंट जनरेट झाले? ॲव्हरेज 5, 6, 4. तर ॲव्हरेज 5 म्हणूया, ठीक आहे? Now if I have generated 5 points, right? Now look at that points again. Is somewhere points are repeating itself? Few points? Is it happening with few points? So if I club together the points which are repeated, how many real points now I have? 3, 4. 3 here, 3. So now I have 3 points. So now try to understand. If I have 3 points and I have to write, let's say 900 words, will it be sufficient? Difficult. So what is the first learning that we have done? That first and foremost thing, I need to develop a multi-dimensional thinking. एक चीज को अनेक चीजों से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, एट अ पर्सनल लेवल, एट अ छोटा लेवल, लेट्स से सोशल ग्रुप, फैमिली के लेवल पे, थोड़ा बड़ा सोशल ग्रुप में भी सोसाइटी लेवल पे, मे बी एट अ स्टेट ऑफ अ नेशन लेवल, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, ये एंगल से मैं क्या सोच सकता हूँ, दैट इज हाउ आई नीड टू थिंक अबाउट. Second thing, whenever, let's say, whatever 5-6 points that you have generated only points, or have you generated what examples I will use in explaining this particular point? ऐसा लिखा है किसी ने? देखो, तो जो भी एग्जाम्पल लिखे हैं, that has to be varied, that has to be from the varied source of knowledge that you have. For an example, देखो, शायद कुछ लोगों ने यहाँ पे जीजा माता एंड शिवाजी ये एग्जाम्पल लिया, अरे लिया है क्या? It is not wrong example, it's a perfect example, but what is happening, everybody is writing it and it is from history. तो historical personality एक एग्जाम्पल का टाइप हो गया. और भी कुछ सोच सकते क्या? देखो, अगर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी लिखना है तो क्या हम लोग गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में लिख सकते हैं? ये तो पता होगा ना सब लोगों को, ऐसा कुछ था ना भाई, था ना? माँ के नाम से ही खुद का आइडेंटिटी बता रहा है कि गौतमी का पुत्र है सातकर्णी, जो मेडिवल टाइम में आई थिंक ही वाज अ वेरी ग्रेट किंग, ठीक है? ये भी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी हो गया. तो अगर हिस्ट्री में जा ही रहे तो सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सनॅलिटी थोडी होंगे, कुछ फिलॉसॉफिकल अँगल से कुछ पुराण असतील, हितोपदेश असतील, वर्धमानांच्या स्टोरीज असतील, अकबर बिकबरच्या स्टोरी असतील, अशा पण आहेत का काही हिस्ट्री मधला काही रिलेशन आहे? मग एखादी हितोपदेशातली थेअरी मांडू शकता का? एखादी पुराणांमधली स्टोरी लिहू शकता का? अरे लिहू शकता का? पार्वती आणि गणपती लिहू शकतो का? लिहू शकतो. बरं, मग एखादी स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी लिहू शकतो का? लिहू शकतो. मायकल फेल्प्स माहितीये का? फेल्प्स जे काय असेल तो स्विमर, ऑलिम्पिक मध्ये बरेचसे गोल्ड मेडल्स मिळाले. हे ऑलवेज से दॅट माय मदर अँड सिस्टर वेर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन माय सक्सेस. अरे लिहू शकतो का? लिहू शकता की नाही? मग एवढे सारे वेगवेगळे व्हेरिड तुमच्याकडे काय असले पाहिजे, एक्झाम्पल्स असले पाहिजे. आणि जेव्हा कधी पण विचार करा, जे पहिले एक्झाम्पल माझ्या डोक्यात आलं, when I have not prepared it, the first example or an argument that came to my mind, it has came to everybody's mind who is sitting in the examination hall.
if that person is writing that essay. This is not a bannat argument, understood? It may be a right argument. So you have to prepare these examples. तिथे जाऊन रॅन्डम विचार करून लिहायला वेळ पण लागेल ना. बट इथे इफ आय हॅव दॅट नोटबुक, सांगितले ना नोटबुक बनवाय, मी आता नोटबुक बनवली. नोटबुकच्या पहिल्याच याच्यात मी काय केलं, आय हॅव पुट दॅट पर्टिक्युलर टेबल. आय हॅव सेड दॅट लार्जर what will be the classification I will do in my book: philosophical topics, social topics, political topics, like मैं से technology related topics और some जो भी यहाँ पे लिखा है. These are the primary classifications in my book. In social topics I have read, and then I have seen that what are the themes that UPSC is generally asking. I found out 2 themes today. One is woman, one is human development / social development. There are also multiple other themes related to society, isn't it? Now what is my responsibility? I will go home today after this workshop. I will make that particular table. I will find out what are the themes. In society, suppose there are 5 themes. I will make that sub things. हर एक theme के लिए 5-6 pages छोड़ दूंगा. And now from day onward, whenever I am reading anything, watching a movie or a news or going somewhere, if I come across something which will be useful in that theme, for an example, I am reading a newspaper and I came across maybe an article or somewhere, वहाँ पे उन्होंने दिया कि हितोपदेशा में एक स्टोरी है, जिस स्टोरी में एक माँ और बेटी की कहानी लिखी गई है, एंड वो कहानी मैं इसमें लिख सकता हूँ. तो आई विल बी ऑन दैट सेम डे विल बी राइटिंग दैट इनटू दैट नोटबुक. और ऐसे ये नोटबुक डेवलप हो जाएगा. ओवर द पीरियड ऑफ मे बी अ ईयर you will have a good quality of material content available in that notebook. उसको ही बार बार ऐसे के टाइम पे पढ़ोगे, अपने आप ये सारी चीजें it will come into your essay, and that will be a unique content which generally people will not have. That will make your essay very very different, right, but different from everybody else, which will catch an eye of an examiner. और examiner बोलेगा अरे आज मुझे इससे कुछ और सीखने को मिला. मिस ही ऐसे नहीं है कि उनको माइकल फ्लेप पता नहीं है, उनको गौतमीपुत्र सातकर्णी पता नहीं है, उनको जिजाऊर शिवा पता नहीं है, उनको सबको पता है. बट व्हेन यू आर कनेक्टेड इट लाइक दिस वे, ही सेइंग यार क्या बढ़िया लिखता है, वाह वाह मस्त लिख रहा है. और फिर वो वाह वाह विल कन्वर्ट इनटू मार्क्स, एंड देन मार्क्स का इट विल कन्वर्ट इनटू बल्ले बल्ले. टू हैव दैट बल्ले बल्ले आफ्टर द रिजल्ट यू नीड टू प्रिपेयर वेरी वेरी हार्ड. अरे कुछ समझे? कुछ डाउट है तो रुक जाते हैं यहीं पे. थैंक यू एवरीबॉडी. अरे थैंक यू.